Radhe Radhe to all my class 8th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we start lesson number 9, part 3rd, development of embryo. We have learned in our previous video how a sperm and ovum get fused and make a zygote. That means result of fertilization is zygote. Fertilization results in the formation of zygote which begin to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to ball of cell. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organ of body. This development structure is termed an embryo. The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. That means that zygote convert into a baby. How this baby convert into a how this zygote convert into a baby, we see here. First, this is a zygote. The zygote get a repetitive cells division. These cells a ball of cell form. These ball of cells start forming groups. Then it convert into a embryo, development of body, tissue and organ. This embryo get multicellular. It attached with uterus implantation. The cell then began to form group that develop into different tissue and organ. जब सेल्स के अंदर ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो. तब वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? हमारी एम्ब्रियो कहलाती है, भ्रूण कहलाती है. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस. इसके बाद वो हमारे यूट्रस की जो वॉल है उससे अटैच हो जाता है. इसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन. द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूट्रस. जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का यूट्रस में होता है. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज एंड ईयर एक्सेट्रा. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस. तो बच्चों, जो ये यूट्रस है, इस जगह पे यहाँ जब एम्ब्रियो बन जाता है आफ्टर सेल डिवीजन, तो ये वो यहाँ अटैच हो जाता है. In this you can see here it attached. और फिर धीरे धीरे इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ईयर्स, हैंड्स, हेड, लेग्स. इस तरह से धीरे धीरे जब सारे ऑर्गन आ जाते हैं तो वो जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटस में, है ना. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब सारे पार्ट डेवलप हो जाते हैं फीटस के, तो मदर उस बेबी को जन्म दे देती है. इस तरह से देखिए. You can see here, this is our ovary. यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, मतलब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है अलग अलग स्टेजेस में. ये जायगोट बन गया. यहाँ पे जायगोट बनने के बाद ये डबल सेल में हो गई, मतलब डिवीज़न हो गया इसका. फिर ये 4 पार्ट में हो गई. फिर 4 से 8 से 16 में, फिर 16 से ब्लास्टोला गैस्ट्रोला स्टेजेस आती है. फिर जा कर के ये हमारे यूट्रस की प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है. एम्बेडिंग एम्ब्रियो यहाँ से अटैच हो जाता है. इसके बाद दैट मीन्स अब एम्ब्रियो बना है. एम्ब्रियो बनने के बाद ये इसका डेवलपमेंट होता है. ये सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इसमें जो ऑर्गन्स इसके ऑर्गन्स एंड टिश्यू इसमें डेवलपमेंट होने लग जाता है. फिर जब सारे पार्ट्स आ जाते हैं तो मदर बेबी को जन्म देती है. उसको क्या कहते हैं? फीटस. अभी तक ये यहाँ पे एम्ब्रियो ही था, है ना.
जब सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज उसमें आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? फीटस. दिस इज ऑल्सो अनदर डायग्राम ऑफ फीटस. यूट्रस वॉल इस तरह से ये अटैच हुआ है यहाँ पे एम्ब्रियो. Internal fertilization take place in hen also, but do hen give birth to babies like human being and cow? You know they do not. Then how are chicks born? Let us find out. This is the birth of the baby. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in the hen's egg is one such protective layer. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that development of chick take place inside the eggshell during this period? After the chick it completely developed, it burst open the egg. तो बच्चों, जो hen होती है उसमें भी जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायकोट बनता है. जायकोट में डिवीज़न होते हैं, तो उसकी जो ओविडक्ट होती है उसके नीचे, ओविडक्ट में वो नीचे की ओर बढ़ता रहता है जायकोट, है ना. इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो चढ़ती रहती है. जो हैन होते हैं उसके अंडे पर जो दिखाई देने वाला जो हार्ड पार्ट होता है, हार्ड शेल जो होती है, वो भी उसे क्या रखती है? प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में उसको सुरक्षित रखती है. जो हार्ड लेयर होती है उसके कैन सी दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स. जो ये इसका हार्ड लेयर जो कठोर कवच होता है उसके पूर्ण रूप से बन जाने के बाद क्या होता है, जो हैन होती है वो एग को रिलीज़ करती है. दैट मीन्स निर्मोचन हो जाता है उसका, है ना. इस तरह से टिल 3 वीक हैन प्रोवाइड वार्म टू एग बाय सिटिंग ऑन इट. मुर्गी के जो अंडों को चूजा बनने में जो लगभग है वो 3 सप्ताह का समय लगता है. अपन ने देखा होगा कि क्या ना, जो हैन होती है वो उसको हीट प्रोवाइड करने के लिए अंडों पर बैठी रहती है. तो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो एग के अंदर जो चिक्स होते हैं उनके विकास के लिए वो ये टाइम पीरियड होता है, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है. तो चिक्स के पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए जो शेल है उसके सेल के मतलब प्रस्फुटन के लिए चूजन के बाद, मतलब प्रस्फुटन के बाद चूजा जो होता है वो बाहर निकल जाता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. यू कैन सी आफ्टर 3 वीक्स ये जो चिक्स है वो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में निकल के बाहर आ जाता है फाइनली आफ्टर 3 to 4 weeks. We come on viviparous and oviparous animal. We have learned that some animal gives birth to young ones while some animal lays egg which later develop into young ones. The animal which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous animals. हम ये जानते हैं कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका विकास वो विकसित होकर शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ क्या देते हैं? एग्स देते हैं जो बाद में इसमें शिशु में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वो एनिमल जो सीधे ही बेबी को बर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विविपैरस. और वो एनिमल जो कि एग देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओविपैरस. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड differentiate between the viviparous and oviparous animal. Try to observe egg of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen and cow, or any other bird. Were you able to observe egg of all of them? If we talk about the egg of few animals are
easy to observe because their mother lay them outside their body. कुछ जंतुओं के जो अंडे होते हैं उनको अवलोकन करना इतना आसान है, इतना सरल है, क्योंकि उनकी माँ जो होती है वो शरीर के बाहर ही अंडे देती हैं. These are example of oviparous animal. But you would not be able to collect the egg of dog, cow and cat. This is because they do not lay eggs. The mother give birth to young ones. These are example of viviparous animal. परंतु अपने ना गाय, कुत्ते और बिल्ली के जो अंडे होते हैं वो एकत्रित हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वे अंडे नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है और वह क्या कहलाते हैं? विविपैरस, जरायुस. Now we start young ones to adult, शिशु से वयस्क बनना. The new individual which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. In some animal, the young one may look very different from the adult. नवजात जन्मे जो प्राणी होते हैं और अंडे जो होते हैं के प्रस्फुटन से निकले जो प्राणी होते हैं तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब वो एडल्ट में कन्वर्ट ना हो जाएं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके जो नवजात जंतु होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. अगर हम याद करें रेशम कीट के जीवन चक्र को तो उससे क्या बनता है? एग से लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, देन एडल्ट, जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है. Observe the different stages of the frog starting from the egg to adult stage. We find that there are the 3 distinct ages, that is egg, tadpole, adult. मेंढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का अगर हम ऑब्जर्व करें, दैट मीन प्रक्षेपण करें, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी? एग होता है, एक टैडपोल और एडल्ट, वयस्क. Doesn't the tadpole look so different from the adult? क्या tadpole वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देती? Similarly, can you imagine that these tadpole would someday become frog? Similarly, the caterpillar or pupa of the silkworm looks very different from the adult moth. क्या tadpole वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल जो है वो एडल्ट मेंढक कैसे बन जाता है या कैसे बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की जो प्यूपा स्टेज है उससे एडल्ट सिल्क मॉथ भी अलग दिखाई देती है ना. तो इसी तरह से वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण जो होते हैं वो नवजात में नहीं दिखाई जाते, मतलब नहीं पाए जाते हैं. तो फिर टैडपोल और प्यूपा का बाद में क्या होता है? Then what happened to the tadpole and caterpillar thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult or drastic changes is called मेटामॉर्फोसिस. आपने एक सुंदर जो मौत है को कोकून से बाहर निकलते हुए देखा होगा, कभी देखिएगा. ये ऐसा मोस्टली बारिश के वक्त होता है. टैडपोल जो होता है वो रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है. वो क्या करता है? पानी या तालाब में, जो गंदे तालाब होते हैं, कीचड़ जिनमें होता है, वहाँ पे छलांग लगाता रहता है और तैर सकता है. कुछ विशेष परिवर्तनों के बाद टैडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण कहलाता है. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है? मनुष्य में जन्म
के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते रहते हैं। Now we come on asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some familiar animal, but what about very small animal like hydra and microscopic organism like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. क्या अब तक हमने क्या देखा है कि अलग अलग स्टेजेस देखी हैं, तो उन सब से हम इंट्रोड्यूस हो ही गए हैं, परंतु बहुत ही छोटे छोटे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, नेक्ड आइज से, माइक्रोस्कोप से ही देखना होता है। अब उनमें जनन कैसे होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं? This is a life cycle of frog, egg, early tadpole, late tadpole, and it convert into adult. So know too about asexual reproduction. We do this practical. Get permanent slide of hydra. Observe them using hand lens or a microscope. Look out for any pleasure from the parent body. Count the number of blazes that you see in different slides. Also note the size of the blaze. Draw a diagram of hydra as you see it. Compare it with the figure 9.11. हाइड्रा की हमें कुछ स्थायी जो स्लाइड्स हैं वो हम देख सकते हैं। उसे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कुछ उभरी हुई संरचनाएं हमें दिखाई देती है। ये जो उभार वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती है? इसकी बड्स होती हैं, है ना। तो ये बडिंग, इसमें बड्स अलग अलग जगह आती जाती हैं और इसका क्या हो जाता है? ये रिप्रोडक्शन हो जाता है। अभी दिस इज ए पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग इन हाइड्रा। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी one or more bulges. These bulges are the developing new individual and they are called buds. प्रत्येक जो हाइड्रा होता है उसमें एक या अधिक उभार यूं दिखाई देते हैं। तो ये उभरे हुए जो पार्ट हैं ये विकसित होकर एक नया जीव बना लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुकुल। और बडिंग मतलब मुकुलन। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। हमने देखा है क्लास 7th में यीस्ट में किस तरह से बर्ड्स आती हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाली जो बर्ड्स हैं उससे एक नया जीव बनता है। इस प्रकार के जनन जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच ओनली ए सिंगल parent is involved is called asexual reproduction. Since new individual develop from the bud in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. हाइड्रा में मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन। Another method of asexual reproduction is observed in the microscope organism is amoeba. Let us see how this happen. If we see these outgrowths are बट देखिए छोटा सा उभार, फिर ये थोड़ा डेवलप हुआ, फिर ये और डेवलप हो गया। तो दीज आर बर्ड्स. It is a type of asexual reproduction, budding. And this is the structure of amoeba. This is the first cell. It dividing into nucleus and dividing into two cells. These are both daughter amoebas. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduce young ones. You will study about these in your higher classes. जो अमीबा है वो भी क्या होता है? एक यूनिसेलुलर होता है। इसमें केंद्रक जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है
इसकी दोनों पार्ट सेल्स में बढ़ जाती हैं। फिर प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस होता है। उसके रिजल्ट से एक पेरेंट से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि जीव विकसित होकर के क्या बनाता है, 2 संतति मतलब 2 डॉटर अमीबास बना लेता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, बाइनरी फिशन। तो मुकुलन और बाइनरी फिशन के अलावा मतलब बर्डिंग और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी भी विधियाँ होती हैं जिसके अंदर मतलब जो सिंगल सेल है, सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस वंस यंग वंस, ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।